So, hello guys, very good evening. Good evening, Good sir. evening, Varun sir. Good Good evening. evening, sir. Good So, evening, sir. so guys, we are here for CCNA 200-301 is the code for CCNA. So, we'll discuss about the CCNA and what all the things are there in the CCNA specifically, and we will take your doubts, your questions as well. ठीक है. So, सबसे पहले मैं बता देता हूँ. My name is Varun. Here you can see I have 17 plus years of experience in IT normally, and I have worked in small to large enterprise network environments and lot of on-site devices I have configured. Like I have real hands-on experience with the devices as well. And I have few certifications as well: CCNA, CCNP Enterprise, some specialist certification, advanced infrastructure, and all. And I have CompTIA Security Plus, ITIL, which is IT Management Certification. Azure is Cloud Fundamentals, Azure Fundamental Certification, and MCSC. So a lot of certification I have completed. So this is about me little bit, right? And सो जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग स्पेसिफिकली इसको पूछना है आप मेरे को बताएं, एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस एज वेल, राइट. सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीसीएनए बेसिकली क्या है. तो इज देयर एनी वन हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज सीसीएनए, या व्हाई सीसीएनए ओनली? जिस Hi, जो good evening, all. यस. Yeah, myself, Rahat Hussain. So, according to me, the CCNA actually is. Uh, Just a second, let me mute everyone first of all. And now you can unmute. Oh, sorry, I'm not sure. Now you can unmute yourself, and now you can speak. Yeah. yeah, may I? Yes, yes. Started. Hi, good evening, all. Myself, Rahat Hussain. Mm-hmm. So, as Varun sir asked that what is CCNA stands for. Mm-hmm. So, according to me, CCNA I mean, it's a name of the certification which is provided by the Cisco company, which is Right. a largest network device manufacturer, and Mm-hmm. I mean, also is provide the certification Uh-huh. related to its devices. Correct. Correct. Any other thing? It's also, I mean, nowadays the network security is going to be higher level. Right. Right. According to this, CCNA is So, also providing lots of certification according to their upgraded device. correct, correct. So, guys, CCNA is actually Cisco Certified Network Associates, right? So, associate level जो है आपका basic level है, right? And we will start from the very basic. So, मेरा question basically ये था कि why CCNA only? There are a lot of other certifications, even like CompTIA, Network Fundamentals, and even any other company like Juniper, like HP, Cisco, HP or Dell or Huawei. There are a lot of different companies. Those are making devices nowadays, and there are a lot of competitors of Cisco as well, right? So my question was why Cisco? For example, I'm giving you a hint in though, but for example, like we are using Colgate nowadays, right? But there are a lot of brands. But whenever we go to the market, we always ask only for Colgate, right? So Right, now sir. can Right, anyone right. can tell me Sir, why CCNA only? So so is because it's one reason worldwide, it can be, sir. Because it's worldwide. Okay. it's a worldwide recognition. That's why. Okay, it is worldwide recognition. Any other? Because no, because if you say worldwide recognition, yeah, it is true nowadays. You can say like that, but there are still a lot of other certifications as well. Those are recognized. Like if HP is providing some certificate, if Juniper is also providing similar kind of certificate, is called JNCIA, right? And other certifications like other companies are also providing the similar kind of certificate as well. But why CCNA? Why we always looks for normally even if you go to Naukri.com or if you go to any other website, normally everybody write that we need CCNA person or CCNA certified or either who have completed their CCNA like that. So why CCNA only? Why Hello. Cisco certification? Yes. Maybe Uh, because this is a popular, maybe the more popular, known name in networking field. I think, sir. Okay. Maybe Actually, I'm sir, not. uh,
maybe Hello. most of the network, if we Hmm. talk about network, it is covered with Cisco. Like every company has their own products, but when we talk about network, I guess they have captured the max market. Okay, okay. Somebody has written the एक्चुअली message. सर ऐसा है हाँ, कि तो सिस्को का इसमें क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इजी है अदर देन वेंडर्स इजी है। के। ये तो आपने बहुत इजी वाली बात कर दी। मतलब ऐसा अगर देखा जाए तो सिस्को को कॉन्फ़िगर करना और जूनिपर को कॉन्फ़िगर करना तो दोनों में जूनिपर डिफिकल्ट। को अगर साइड में रख देते हैं, देर आर ऑल अदर डिवाइसेस ना, कि आपकी नहीं जो अगर एचपी है, अगर डेल हम है, नहीं अरूबा ऐसा भी है, है सर। रकस है, उन सब में भी सिमिलर कमांड चलती है, वो भी इजी है। सर ये हाँ अगर इसको सीख लेंगे तो सारी चीजें कर सकते ओनली हैं, लेकिन अगर नेटवर्किंग एक डिवाइस ही स्पेसिफिक बनाता है सीखेंगे ना इसलिए। तो हाँ हाँ। एनीवे तो तो not a हेलो problem. So let me tell you, I understand. So basically क्या है यहाँ पर, the main important thing is the why CCNA. First of all, whenever we talk about CCNA, it is coming from Cisco system. वो जो कंपनी है बेसिकली वो बहुत पहले आई थी, मतलब सबसे स्टार्टिंग में Cisco was the company who started their own certifications and who became the, you can say, the मोनोपोली बन जाती है ना मार्केट में, तो उनकी है बेसिकली। लेकिन इनके जो कोर्सेज आए थे, देर वाज नो वन हु स्टार्टेड देयर ओन कोर्सेज, और उनके पास ऐसा कुछ कोई कोर्स मटेरियल या कुछ भी इतनी बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट कोई स्ट्रक्चर नहीं था कोर्सेज का, देर इज नथिंग। ठीक है, तो जो आपका सीसीएनए है बेसिकली वो ही स्टार्ट हुआ, और सिस्को ज्यादा फेमस हो गया, सीसीएनए ज्यादा फेमस हो गया बिकॉज इनका जो कोर्स करिकुलम है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में, डीप में हर एक चीज बताई जाती है। तो कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हो, द कंसेप्ट यू आर लर्निंग ओवर हेयर, दैट विल वर्क इन एनी ऑफ द डिवाइसेस। लाइक कोई भी कंपनी की डिवाइस हो, वो सारे कंसेप्ट सेम ही रहने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव कंप्लीटेड CCNA, देन you will learn network fundamentals, you will learn how to work on devices, you will understand what kind of devices looks like, या वो कौन कौन सी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, वो सारी चीजें आपको पता लग जाती हैं। दैट इज वाई सिस्को इज द पॉपुलर वन, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले कोर्स बनाया था इन 1984 में। ठीक है, मतलब 1984 में तो नहीं बनाया था, उसके बाद थोड़ा सा बनाया था, बस एक कंपनी आई थी 1984 में बेसिकली। ठीक है, और उस टाइम पे ही, उसके कुछ ही टाइम बाद इन्होंने अपना CCNA कोर्सेज बना दिया था, और ये पॉपुलर होता चला गया बिकॉज इट कवर्स in-depth knowledge of all the basic network devices and how to configure and how to implement in the real world। ठीक है, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कोलगेट का, देखो कोलगेट सबसे पहले आया था, उसके बाद बहुत सारे कोलगेट आ लिए, लेकिन हम फिर भी नॉर्मली अगर हम जाते हैं तो कोलगेट ही मांगते हैं, और इन केस रिक्वायरमेंट होती है तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये वाला नहीं, वो वाला चाहिए, या प्रेप्सोडेंट चाहिए, या एग्जैक्टली जो हमें चाहिए होता है स्पेसिफिकली। अदरवाइज कोलगेट इज अ नॉर्मल ब्रांड बन गया बेसिकली, कि जो आपका स्पेसिफिकली हर एक जगह ही काम करेगा। तो और जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे मैंने आपको कहा, वो सारी कंपनीज ऑल्सो व्हाट दे रिक्वायर, दे नीड अ CCNA पर्सन। तो उनको पता है कि अगर CCNA आता होगा तो वो किसी भी डिवाइस पे काम कर लेगा। इफ द पर्सन नोज द CCNA, देन ही कैन वर्क ऑन एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस। क्लियर है इतनी बात सबको? यस सर क्लियर। So basically, जैसे मैंने कहा, Cisco Systems is a company, that is Cisco System Inc, and it is situated in San Jose, California, US, right? And it is founded in 1984 December 10, you can say, and around 39 years ago, right? And इसके जो founders हैं basically, that is Leonard Bosak and Sandy Lerner, right? वो पहले थे बेसिकली, मतलब ये फाउंडर्स तो अभी भी हैं, मतलब बेसिकली अभी ये हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट जो इसका करंट CEO है वो है आपका इसका चक रॉबिन्स, जो 2015 से आया है। एंड अर्लियर टू दिस 2015, मतलब उसके बाद जो आपका, जो उससे पहले जो था आपका, वो था जॉन टी चैम्बर्स। ठीक है, वो पहले से था बेसिकली, हमारे टाइम में तो यही था स्पेसिफिकली, और आज की डेट में आप इसके एम्प्लॉयज दे सकते हो लगभग 90,400 एज ऑफ 2024। तो एक काफी बड़ी कंपनी है बेसिकली, एंड इट इज प्रोवाइडिंग। तो हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं बेसिकली क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। So you can go to the Cisco website, and you can go to specifically on learn, and then you can go to the certifications, and then you can go on to browse all certifications, right? Or then you can go for enterprise. Right, in enterprise you can see there is two certifications. One is, first of all, this is entry level certification, which is called as Cisco Certified Support Technician.
and then there is a entry level certification which is called Cisco Certified Network Associate. So normally हम लोग यहाँ पर इंडिया में स्पेसिफिकली बात करें तो वी आर नॉट डूइंग गोइंग फॉर द CCST, because CCST, in case you want to give the global exam, then you have to give this CCST exam and then CCNA. So in that case you have to give the 2 exams, आपको 2 exam देने पड़ेंगे. But for the CCST, right, CCST nobody is doing directly, we can do the CCNA as well, and you can give the direct exam. If you can give you can give the direct exam of CCNA and you will get the real certification, the global certification, right? तो वो डिपेंड करता है कि आपको CCNA. बट आज की डेट में अगर हम बात करें ना, पहले क्या था कि CCNP के लिए CCNA प्री रिक्विजिट था. मतलब अगर आपको CCNP का सर्टिफिकेशन चाहिए देन आपको CCNA का सर्टिफिकेशन जरूरी था करने के लिए. बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, और आप डायरेक्टली आप CCI भी कर सकते हो. बट ऑब्वियसली बात है कि आपको सारी ट्रेनिंग एंड सारी चीज़ों से जाना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है. दैट इज वाई. तो बट आप यहाँ पर कर सकते हो. तो हम लोग बेसिकली चलते हैं CCNA पे. तो लर्न मोर अबाउट CCNA पे क्लिक करते हैं. अरे मेरा लॉगिन मांगने लग जाता है यार बेसिकली. सेकंड, लेट मी Hello, sir. login itself. Yes. CCST is available in the US or only for in India? No, it is available both places. Okay, sir. But normally we don't do CCST here, normally in India specifically. I saw that in other countries people do CCST and then they will give CCNA, but there also the ratio is very less for CCST. Nobody goes for CCST normally, until unless they want to become someone in sales or something they if they just want to get the little information, then only they do. Okay, so let me go to again to enterprise CCNA. Then you can see here, guys, CCNA. If I'll say explore the topics, let me go exams and CCNA exam detail. Because we want to check these. Where it is going, man. Sorry, exams and trainings, and then exam detail. I don't know why it is taking me to the wrong page. I just wanted to show you the syllabus of CCNA basically. Learn and then certifications, view all certifications. Come on. Explore enterprise. Wow. So you can see the global exam cost is actually $300 and the exam duration is 120. So this exam is just whenever you want to go for the global exam, then only you need to give this exam CCNA, right? So let me go to the specific one. Okay. So basically अगर हम बात करें सिस्को सर के लिंक exam- भेज दिया मैंने, शायद वही है क्या, आप देख लो एक बार. वो हम्म, नेटवर्क एकेडमी कुछ तो था. एक सेकेंड. क्लिक तो किया मैंने. No, not this one. Yes, I think so. नहीं, ये तो ड्यूरेशन दिखा है नेटवर्क फंडामेंटल्स का. पता है. अरुण Anyway, सर, तो हाँ जी. यस, आप एक बार लिंक शेयर कर दीजिए ना चैट में.
नो प्रॉब्लम, सिस्को का मैं लिंक शेयर करता हूँ, बट अदरवाइज आप cisco.com पे जाओगे ना डायरेक्ट, वहीं से मिल जाएगा आपको वो। बट बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो सिस्को, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज द वर्ल्ड वाइड वैलिड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इफ यू वांट टू गो फॉर। अदरवाइज इफ यू हैव got trained on the CCNA specific certification, then only it is fine. Then also it is fine. It is not required to be having the global certification until unless your company is asking that we need a specified certified person only। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। you can simply go through with the trainings and all, and then you can maybe write the higher level exam later on when you get, once you get the hands on experience, right? That also possible. So why we do the CCNA? To become a network engineer, this is one of the best way to start the networking career in the network fundamentals. So what all we study here: network fundamentals, network access, IP connectivity। तो नॉर्मली यहाँ पर हमको कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। मतलब मैं नहीं चाहता कि आपको कोई पहले से नेटवर्किंग आनी चाहिए या फिर आईपी एड्रेसिंग या कुछ पहले से पता हो, बिकॉज वी विल स्टडी इन डेप्थ ऑल दीज थिंग्स, राइट? हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले से नॉलेज की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। बस आपको नॉर्मल कंप्यूटर चलाना आना चाहिए अपना, जो कि आज की डेट में सबको ही आता है बेसिकली, है ना? स्मार्टफोन चला रहे हैं सब लोग। एंड एडिशनली यू शुड नो नॉर्मली कि आपकी जो कंप्यूटर की डिवाइसेस कौन कौन सी हैं या क्या चीज़ है। बट बाकी इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला नो प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब नो प्री नॉलेज रिक्वायर्ड अबाउट नेटवर्क और समथिंग, ठीक है? सिंपली द बेसिक पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम। और जैसे मैंने कहा कि आपका ये डॉलर को कन्वर्ट करके वैसे आज की डेट में चेंज हो गया है, तो मैंने पुराना लिखा हुआ है ये। तो इट्स नॉट अ ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सिर्फ आपके एग्जाम की कॉस्ट है। ग्लोबल एग्जाम अगर आप देना चाहते हो, ये इट्स नॉट द ट्रेनिंग कॉस्ट। तो ट्रेनिंग कॉस्ट इज डिफरेंट। एंड एग्जाम जो इसका ग्लोबल एग्जाम जब होता है, एंड दैट इज 120 मिनट्स, एंड उसमें 55 से 65 क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं आपके, मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, सिमुलेट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, ठीक है? और नेटवर्किंग डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस, वायरलेस लैन कंट्रोलर, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, वी विल स्टडी ऑल दिस थिंग्स, है ना? ठीक है? तो व्हाट वी विल लर्न, हाउ टू मैनेज द नेटवर्क, हाउ टू ट्रबल शूट द नेटवर्क, हाउ टू implement the network devices, how to configure the network devices. We will learn all these things in the CCNA. And also what kind of jobs we can understand, like network admin, IT admin, network technician, engineer, IT tech support, help desk technician, etc. मतलब कोई भी रोल हो सकता है normally, but these kind of roles you can go for after completing the CCNA। आपको अगर नॉलेज है, बेसिकली आपको अगर कंसेप्ट पता है, देन यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ रोल, ठीक है? और हम लोग यहाँ पर टूल्स यूज करते हैं, बिकॉज रियल डिवाइसेस ऑल्सो वी कैन यूज, बट एवरीथिंग इज वर्चुअलाइज नाउ डेज। तो सिस्को की तरफ से सिस्को का ही एक टूल आता है विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज पैकेट ट्रेसर, ठीक है? वो सिस्को की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो आप, और वहीं पे आपको क्रेडेंशियल बना के हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। तो दैट कैन बी यूज फॉर अ इंडिविजुअल पर्पस, कि हम लोग खुद से यूज कर लें, या फिर हमारे नेटवर्क किंग्स में भी आपके पास ईवेनजी का लैब जो है वो मिलेगा एक्सेस, तो आप वहां पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस देयर एज वेल। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम अपने पर्सनल भी कर सकते हैं, एंड ईवेनजी पे जो हमें लैब का एक्सेस मिला है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है सबको इतनी बात? सर आई हैव वन क्वेश्चन। टेल मी। सर सिस्को की साइट पे मैं पैकेट रेसर को डाउनलोड करना चाह रहा था, पर वो डाउनलोड हो नहीं रहा था। कोई बात नहीं, हम करवा देंगे जब क्लास में करेंगे ना, वो हो ओके जाएगा। सर। ओके सर। सर हाँ जी, मेरा ना एक क्वेश्चन था सर। बोलो जैसे बोलो। हम एग्जाम की फीस भरते हैं जी, हाँ, जो हम्म। सिस्को का एग्जाम है, वो हाँ हाँ। रिफंडेबल होती है कि नहीं होती सर, अगर हमसे नहीं, क्लियर नहीं हो पाता तो? ना ना, रिफंडेबल नहीं होती वो वाली एग्जाम जो आपका है ना, बेसिकली वो रिफंडेबल नहीं होता। आपने क्लियर होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम भी गया, फीस नहीं, भी गई। ऐसा ऐसा कोई ड्यूरेशन होता है सर उसमें भी? जैसे मैंने एक बार एग्जाम दे दिया, उससे हाँ, क्लियर नहीं हुआ, उसके करेक्ट। बाद मैं कितने टाइम बाद वो एग्जाम दोबारा दे सकता हूँ सर? नॉर्मली 1 वीक होता है। 1 वीक? हाँ, 1 वीक तक नहीं दे सकते आप। 1 वीक के बाद बुक करोगे आप एग्जाम, दोबारा से पैसे भरने पड़ेंगे, एंड देन तो वो आप दोबारा दे सकते हो एग्जाम। ठीक है सर, ठीक ठीक है? तो बेसिकली क्या है आपका है। कि सीसीएनए क्यों करना है हमको, बिकॉज हम ये सब यहाँ पर सीखने आए हैं, राइट? ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन है कि वाई सीसीएनए, जैसे मैंने बताया कि सीसीएनए ही क्यों करनी है, बिकॉज आप देख सक पा रहे हो कि सीसीएनए में हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट? सर इन एनीवन हैव जॉब्स में से बेस्ट जॉब कौन सी है? बेस्ट? बच्चे बेस्ट कुछ भी नहीं है, जो मिल जाए। एज अ फ्रेशर तो आपको सबसे पहले जॉब मिलनी चाहिए ना, ठीक है? सर सो इट इज मैं नॉट अबाउट द ऑलरेडी
नॉट अबाउट द नेटवर्किंग बेस्ट का वन। जॉब में हूँ। हाँ, दैट विल बी ग्रेट, दैट इज गुड। तो आपके पास डिपेंड करता है बच्चे, इट्स नॉट अबाउट द जो आपका टाइटल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अपनी बात यस करूं कि मेरा टाइटल अगर मान लो एज अ कोई बहुत मेरा मेरा टाइटल लग देते हैं नेटवर्क प्रिंसिपल इंजीनियर, तो मैं उस नेटवर्क का प्रिंसिपल थोड़ी बन जाऊंगा। बट वो टेक्निक उस पे टाइटल पे मत जाओ। बेसिकली क्या है कि टाइटल ये अलग अलग रहते हैं नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशंस में नेटवर्क एडमिन, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर, इसी टाइप के वो रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द वर्क, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि काम क्या है, काम डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक हेल्प डेस्क सैलरी क्या टेक्नीशियन, होती है सर इसकी? सॉरी बेसिक सैलरी इसकी? बच्चे डिपेंड करता है आपके कहाँ पे, आपके सिटी पे कहाँ पे आप जॉब ले रहे हो, मतलब कौन से सिटी में हो, कौन सी प्लेस पे हो, इट डिपेंड्स। अगर मैं बैंगलोर की बात करूँ जो आईटी हब है, वहाँ पे तो आपकी सैलरी हो सकता है 40-50 हज़ार से शुरू हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कि आप कहाँ पे हो और वो जॉब की लोकेशन कहाँ पे है, इट डिपेंड्स। इंदौर से। हाँ, वहाँ पे भी जैसे आप बोले इंदौर, तो डिपेंड करेगा वहाँ की क्या कल्चर है, वहाँ पे क्या सैलरीज हैं नॉर्मली, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है या कोई और कंपनी वहाँ पे आसपास चल रही हैं। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, सिटी, ठीक है, लोकेशन, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो है सैलरीज क्या होंगी। ठीक है, इट इज़ नॉट कि अगर आपने सीसीएनए करा है तो हो सकता है कि एक सीसीएनए करने वाला है जो वो 50 हज़ार ले रहा है और एक बंदा 25 ले रहा है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो उसकी लोकेशन अलग होगी। और ये भी हो सकता है कि जो रोल आप जिसके लिए गए हो वो चैलेंजिंग रोल था और आपने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया, बहुत सारे ऐसे डीप क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, है ना, तो तब भी आपको ज्यादा सैलरी मिल सकती है। इट इज नॉट कि फ्रेशर के लिए नॉर्मली, फ्रेशर के लिए भी यही है कि फ्रेशर को कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, और वहां पे लिखा होता है कि 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए या 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, इट डिपेंड्स, है ना। सर यहाँ पे हमारा इंटरव्यू भी कराएंगे कि खाली पढ़ाएंगे? वो आप नेटवर्किंग से बात कर सकते हो बेसिकली, है ना, मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा। ओके सर, आप रेफरल दे सकते हो हमको कल, अगर जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी? बच्चे बिल्कुल दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ, है ना। बट थैंक यू। पहले आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात है पढ़ने के लिए, है ना। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक इंटरव्यू कैसे क्लियर करोगे। सर आज फर्स्ट क्लास ही है ना? राइट राइट, फर्स्ट क्लास है आज, बिल्कुल। हम सिर्फ सर डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट हेलो टाइप सर। ऑफ थिंग्स आते हैं। सर हाँ जी। सर एक बात है कि हम्म जैसे हम जॉब करते हैं ना सर, हम्म जैसे हमको वो रोल भी दे देते हैं, अभी आपने इतना काम ही देखना है, हम्म आईटी का हेल्प डेस्क का राइट, देखना है और फील्ड का देखना है। करेक्ट। जब हमसे उनको मांगते हैं ना भी हमको रोल मैंडेटरी तो है कम से कम दो ना, हम्म हमको जैसे सर्वर का एक्सेस दोगे तो तभी तो हम काम कर पाएंगे ना। करेक्ट। तो वो बोल देते हैं अभी आपको सर्वर का एक्सेस नहीं मिलेगा, आप काम देखो, भी ऐसे कैसे काम चलेगा फिर? दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन ना। वो क्या होता है बेसिकली, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो कई बार क्या होता है जैसे वो नॉक पे बिठा देते हैं स्टार्टिंग में फॉर फ्रेशर्स, आवाज से है नहीं ना। आ रहा। नॉक का मतलब क्या है, जो आपका जो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है उस पे बिठा देंगे आपको, कि आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो। यू कैन जस्ट गेट द ऑब्जर्वेशन की हाउ एग्जैक्टली थिंग्स हैपन। धीरे धीरे आपको वो एक्सेस देंगे, जब आपको पता लग जाएगा उनको कि आपको आता है या आपसे छोटा मोटा काम करवा लेंगे, देन दे विल अंडरस्टैंड कि यू कैन डू। तो वो डिपेंड करता है कि वो नॉर्मली आपको एकदम तो नहीं देगा कोई भी, अपना सारा नेटवर्क आपके हाथ में रख देगा, कुछ गड़बड़ कर दिया तो कैसे चलेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, उनको करके भी दिखा दिया हमने भी, ऐसे ऐसा होता है वो, जो हम एसओपी बनती है ना सर, हम्म। एसओपी बनाकर उनको दिखा दी भी, जे प्रोटोकॉल है जे हम फॉलो करते हैं, उनको सब कुछ दिखा दिया सर। वो फिर फिर भी वो आपकी बोलते हैं कंपनी पता में नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है। तो एनीवेज, तो मैं बेसिकली क्या कह रहा था कि आपका कि यहाँ पर हम आगे करते हैं, आगे समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाई नेटवर्क इज सो मच इंपॉर्टेंट, कि नेटवर्क इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, सीसीएनए हम पढ़ लेंगे, हम नेटवर्क इंजीनियर बन जाएंगे, हम जॉब भी ले लेंगे, लेकिन हमें ये पहले ये समझते हैं कि धीरे धीरे कि नेटवर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कोई बताएगा कि वाई नेटवर्क इज सो मच इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज, सर एनी मैं आइडिया। सर मैं नेटवर्क के बोल सकता हूँ बगैर सर। तो नाम कनेक्टिविटी बताओ हो अपना एक्चुअली पाएगी? नाम। सारी रहा मैं मेरा नाम राहत है सर। हाँ, एक्चुअली बोलो सारी बोलो। कम्युनिकेशन जो होती है ना वो नेटवर्किंग बेस पे ही है सर। अभी अगर करेक्ट हम लोग फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जैसे जूम के ऊपर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये भी जस्ट ये एक नेटवर्किंग ही है करेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेटली इट लोग। इज अ नेटवर्क, राइट। यस सर।
So we can say that we are living in a kind of environment where everything is connected nowadays, right? Correct. सब कुछ connected है, Right, sir. and we are using the web of networks, है ना? एक नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है पूरे वर्ल्ड में. तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नेटवर्क चल कैसे रहा है एक्चुअल रियल एनवायरनमेंट में, कहाँ से पैकेट जा रहे हैं, कहाँ से हमारा डेटा जा रहा है आ रहा है, वो सब हम समझेंगे. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका नेटवर्क जो है वो जरूरी इसलिए है बिकॉज ऑल द डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड नाउअडेज, एंड इवन अवर मोबाइल फोन्स, इवन अवर थिंग्स मतलब जिसको हम बोलते हैं आईओटी. किसी ने सुना है नाम आईओटी का? Yes, sir. मैंने सुना Yes, है. sir. Internet IoT of मतलब Things. yes, Yes, IoT sir. मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स Yes, sir. नाउअडेज इट इज इंक्रीजिंग. फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन पे तो आईपी होता ही है, यानी कि वो तो कनेक्टेड होता ही है. आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका एसी, दीज ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड नाउअडेज. और अगर मान लो आप घर पे लाइट बंद करना भूल गए हो, तो वो भी अगर आपके पास एप्लीकेशन है या आपके आईपी कैमरा है, तो घर से ही आप कैमरे से देख लेते हो या अपनी एप्लीकेशन से स्विच ऑफ कर देते हो किसी लाइट को. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो जितनी भी हमारी डेली यूजेज की डिवाइसेस हैं वो भी सारी इंटरनेट से कनेक्टेड हो चुकी हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुकी हैं. दैट इज वाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क नाउअडेज. और आपको पता है बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन ऑल्सो नाउअडेज आपकी सारी ट्रांजैक्शन से लेकर के सारी इंफॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग इज डिजिटल, राइट? सो दैट इज वाई ऑल्सो वी आर इन द नीड ऑफ नेटवर्क, और वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क, राइट? ठीक है, to do the most of the things we have applications and how we are able to like access those application, वो सारी चीजें कैसे हो रही है? नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से. So that is why network is so much important. Got it? Yes, sir. So next question is what is network? नेटवर्क क्या है बेसिकली? सर सारे लैपटॉप सिस्टम्स को एक के साथ जोड़ना, एक दूसरे के साथ. सर जब कभी भी सर एक या दो से अधिक कोई भी सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो हम एक में कनेक्ट कर देते हैं. जी सर. या हम ऐसे बोलते हैं बेसिकली कि whenever we group of devices connected with each other sir or network. करेक्ट. अच्छा, सर पहले दो हम होस्ट को कनेक्ट करने के लिए होता है नेटवर्क, मतलब पहले हम कनेक्ट अगर होता ये है. देखें कि व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्क को छोड़ते हैं पहले, व्हाट इज नेटवर्किंग? ये भी कोई डिफरेंट चीज है या सेम बात है? सर जान पहचान करना एक दूसरे के साथ. सर नेटवर्किंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराते हैं. करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोला. बेसिकली क्या है कि नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग नेटवर्किंग डिवाइसेस और नेटवर्क डिवाइसेस विद ईच अदर. मतलब एक प्रोसेस है. मतलब अभी हमने नेटवर्क हमारा पूरा बना नहीं है. बेसिकली आई एम इन द प्रोसेस. फॉर एग्जांपल ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है. मुझे इन दोनों के बीच में फाइल्स को शेयर करना है, एंड व्हाट आई वांट टू कनेक्ट दीज टू कंप्यूटर्स विद ईच अदर. इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है. तो मुझे क्या चाहिए वो हम देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे बेसिकली. बट फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर केबल चाहिए जिससे मैं कनेक्ट करूंगा, या फिर यहाँ पर वायरलेस होगा, वाईफाई से कनेक्ट करूंगा इन दोनों को, ठीक है. देन ओनली वी कैन. सो द प्रोसेस व्हेनेवर वी आर असाइनिंग आईपी एड्रेस, हालांकि हम समझेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है डिटेल में. वी आर असाइनिंग आईपी एड्रेस, दिस इसको भी असाइन कर रहे हैं. तो ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड द नेटवर्किंग, है ना. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेटवर्किंग, देन यू कैन टेल द इंटरव्यूअर कि नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस विद ईच अदर. इट्स अ प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब जो काम अभी चल रहा है, विच इज नॉट कंप्लीटेड येट, राइट. यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ नेटवर्क, राइट. तो जब आप नेटवर्क बनाने के लिए उसका प्रोसेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्किंग, राइट. एंड नाउ व्हेन वी से नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क इज विच इज समथिंग एस्टेब्लिश्ड एंड ऑलरेडी शेयरिंग देयर रिसोर्सेज. तो हम नेटवर्किंग करते क्यों हैं? रिसोर्सेज शेयर करने के लिए. जैसे अगर हम नॉर्मल पीपल टू पीपल नेटवर्किंग की भी बात करें, दैट इज वाई हम क्यों दोस्ती करते हैं किसी से. वाई वी मेक फ्रेंड्स? टू अंडरस्टैंड देमसेल्व. हम अपनी बात बताने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनके साथ इधर जाने के लिए, उनके साथ घूमने के लिए. तो वो भी क्या है बेसिकली आपका क्या है कि आपकी जो रिसोर्सेज है आप उनको शेयर कर रहे हो, ठीक है. और आपके फ्रेंड के पास बाइक है, आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसकी बाइक पे बैठ के जाओगे, तो उसका रिसोर्स शेयर कर लिया आपने. सिमिलरली नेटवर्क में भी डिवाइसेस जो हैं जो अपना रिसोर्सेज को शेयर करती हैं. फॉर एग्जांपल दिस पीसी हैव अ फोल्डर एंड दैट फोल्डर हैव सम स्पेसिफिक फाइल्स एंड आई वांट दिस फाइल्स टू बी शेयर्ड ऑन दिस कंप्यूटर एज वेल. तो मेरे को शेयर करना है ना यहाँ पर, ये फाइल्स को यहाँ पर भी लाना है. तो एक तरीका तो ये है कि मैं पेन ड्राइव लगाऊं, मैं यहाँ पर कुछ सीडी से रिकॉर्ड करूं, फिर यहाँ पे डालूं, जो पुराना तरीका है हमारा पेन ड्राइव के थ्रू. बट अगर मेरे डायरेक्टली डिवाइसेस आर कनेक्टेड होंगे आपस में, तो बेसिकली क्या होगा, वो आपस में अपने रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे.
So network is what? If somebody asks you what is network, then you can say the device, when the devices are interconnected and already sharing their resources is called a network. ठीक है? Then एक या एक से ज्यादा devices आपकी जब आपस में connected होंगी, when one or more devices are interconnected with each other is called a network, right? When they are already sharing their resources. And networking is a process of communicating devices in order to share the resource, क्योंकि हमें करना है अभी. क्लियर है? तो नेटवर्किंग एंड नेटवर्क क्लियर हो गया सबको? Yes, sir, clear. Yes, sir. नाउ व्हाट इज से वेल वी से व्हाट इज इंटर नेटवर्क? इंटर नेटवर्क अंदर का नेटवर्क। देखो इंटर का मतलब क्या होता है? बीच। इंटरकास्ट तो पता है सबको? जी सर। So basically inter matlab whenever we are going into the different network, basically for example this is the network of Amazon, right? And this is a network of Google, or maybe your network, maybe you are sitting over here. Whenever you are trying to access, or either this Google is trying to access the Amazon network and they are getting interconnected, that is called the inter network. Whenever different networks connects with each other is called the inter network. इंटरनेट मतलब डिफरेंट नेटवर्क. जब दो अलग अलग नेटवर्क, अब हो सकता है कि एक नेटवर्क आपका यूएस में बना हुआ है, वहां पे कोई कंपनी XYZ उसका नेटवर्क बना हुआ है, वहां पे 50 राउटर लगे हैं, 50 पीसी लगे हैं, या जो भी नेटवर्क डिवाइसेस लगी हैं. सिमिलरली दूसरी जगह पे, यूएस की जगह पे ये आपका ऑस्ट्रेलिया में लगा हुआ है, कुछ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपके यहाँ पर डिवाइसेस लगी हुई हैं, यहाँ पर कुछ लगा हुआ है बेसिकली. तो जब ये दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देंगे, विच इज दैट इज कॉल्ड द इंटर नेटवर्क. क्लियर है? सो नेटवर्किंग प्रोसेस, नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी, एंड इंटर नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क्स विद ईच अदर. गॉट इट? सर हेलो Yes. यस हेलो यस यस. बोल रहा था सर, आप जो एग्जांपल दिया यूएस में एक नेटवर्क है, ऑस्ट्रेलिया में एक नेटवर्क है, अगर इस दोनों में कनेक्ट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं इंटरनेट. अगर यूएस में वही नेटवर्क, अगर ऑस्ट्रेलिया में वही एक ही नेटवर्क अगर होगा तो उसमें अगर कनेक्ट करूंगा तो उसको क्या बोलेंगे? अगर आप ये यूएस का सेम ब्रांच है तब भी उसको इंटर जी. नेटवर्क ही बोलेंगे. ठीक है? ओके. चाहे उसकी ब्रांच हो, सेम ही नेटवर्क हो, तब भी उसको इंटर नेटवर्क ही बोलेंगे. बेसिकली क्या है कि दिस इज एंटायरली सेपरेट नेटवर्क विच इज कॉन्फ़िगर्ड एंड रनिंग फाइन. क्योंकि जो भी नेटवर्क विदाउट दिस पर्टिकुलर नेटवर्क इज आल्सो वर्किंग फाइन इज कॉल्ड अ नेटवर्क इटसेल्फ. ठीक है? ओके सर हाँ जी. जैसे हमारा एक ब्रांच हमारे मुंबई में है और दूसरी ब्रांच हमारी ऑस्ट्रेलिया में है, अगर उसको कनेक्ट MPLS लिंक के थ्रू ही कनेक्ट कर पाएंगे ना सर उसको? अरे पढ़ाई नहीं हमने MPLS, कहाँ पहुंच गए? नहीं जो हमने क्यों डरा रहा है सर हमें? पता क्या है, जहाँ मैं जॉब करता हूँ ना, I understand if somebody is doing some job and want to share the कि मैं ये कर रहा हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो ठीक है अभी जो हम बेसिकली स्क्रैच से चल रहे हैं. द रीजन इज देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज को जिनको कुछ नहीं पता है, तो हम बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे. तो जिनको थोड़ा थोड़ा पता है, ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड यस योर सर, हॉर्सेस. प्लीज सर, वो स्क्रैच से ही कीजिएगा, हाँ, तो हम क्योंकि हमने स्क्रैच से ही इसलिए किया है चलेंगे. नो नो, क्योंकि बिल्कुल आई भी कुछ अंडरस्टैंड आइडिया, आई अंडरस्टैंड कॉलेज में कुछ और पढ़ाते हैं, फिर जब यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं यहाँ पे कुछ नई दुनिया होती है. करेक्ट. सो नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम. सो आई विल मेक श्योर दैट कि आप हम लोग स्क्रैच से ही चलेंगे. तो दैट इज वाई. तो जो मैंने नहीं पढ़ाया ना, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट बाद में जब वो टॉपिक आएगा, वो टॉपिक भी आएगा, अब उसके ऊपर जाएंगे, डिटेल में समझेंगे. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, वो इंपॉर्टेंट चीज है. तो देखो हमने सबसे नॉर्मल चीज समझी कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क क्या होता है, इंटर नेटवर्क क्या होता है. नाउ अनदर थिंग इज जो सबको पॉपुलर है, इंटरनेट क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेट? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट. सर इंटर नेटवर्क से वर्क हटाएंगे, इंटरनेट बन जाएगा. सर वेब ऑफ नेटवर्क. इट्स नॉट अबाउट स्पेलिंग्स. हेलो हाँ. सर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट सर, आई थिंक. और इतना आसानी से बोल दो आप इसको, वेब ऑफ नेटवर्क. सर वेब ऑफ नेटवर्क. राइट. वेब ऑफ नेटवर्क यानी कि जितने नेटवर्क हैं अलग अलग, उनका सबको आपस में जोड़ दे. देखो आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं. द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब ये कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, आपको क्या लगता है कि इंटरनेट कोई पैदा हो गया अपने आप से, या फिर आपको लगता है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से आती है? जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट पे ढूंढ लो, गूगल कर लो, ये कर लो, वो कर लो. तो ऐसा कुछ भी नहीं था पहले. ठीक है? बेसिकली क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि आप अपने घर पे बैठे हो और आपके पास एक कंप्यूटर है, और मैं अपने घर पे बैठा हूं, मेरे पास एक कंप्यूटर है. ठीक है?
मैंने बोला यार हम दोनों को ना कम्युनिकेशन करनी है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जब ये इंटरनेट आया भी नहीं था, भूल जाओ, पुरानी बात, पीछे चले गए बिल्कुल, हम हिस्ट्री में चले गए। तो हम क्या चाहते हैं बेसिकली कि हम इन दोनों कंप्यूटरों को कनेक्ट करना चाहते हैं, हम दोनों पर्टिकुलरली। ठीक है, कोई भी नाम ले लेता हूँ, अजय का नाम ले लेता हूँ मैं। अजय और मैं, हम दोनों क्या चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, और हमारे घर में एक कंप्यूटर है। हम बात कर रहे हैं 1990s की, या 1990 से भी पहले की बात कर रहे हैं अगर, तो हम दोनों को आपस में कनेक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो हमने क्या करा यार, हमने खुद से एक तार डाली अपने घर से इसके घर तक, और यहाँ से कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर एक और दोस्त आ गया, वो बोला यार मेरे को भी कनेक्ट कर लो, इसको भी कर लिया। फिर एक और दोस्त आ गया, उसने बोला यार मेरे पास भी कंप्यूटर है, मुझे भी कर लो। ठीक है, फिर एक और दोस्त आ गया, उसने बोला मुझे भी कर लो। तो ऐसे ऐसे करते क्या हुआ, सारे कंप्यूटर, सारा ये जो डिवाइसेस हैं एक दूसरे से कनेक्ट होती चली गई। ठीक है, अब इसके पास क्या था, इसके पास गेम्स थी, मान लो इसके पास कोई डेटा था, इसके पास कुछ और इंफॉर्मेशन थी, इसके पास कोई और इंफॉर्मेशन थी, इसके पास कोई और इंफॉर्मेशन थी। तो इसके पास कुछ और था, वो मुझे मिल गया, जो इसके पास था वो मुझे मिल गया। तो दैट इज हाउ इंटरनेट गॉट स्टार्टेड। मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल कंपनीज अपना अपना नेटवर्क बनाती गई और एक दूसरे से स्टार्ट कम्युनिकेशन करती गई। इसको हम पहले के टाइम पे बोलते थे आरपानेट। ठीक है, इंटरनेट से पहले आया था आपका आरपानेट। ठीक है, तो आरपानेट ये बना था आपका, पहले बेसिकली बना था डीओडी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए। तो पहले क्या होता था, जब वॉर होती थी ना, तो कोई भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर लेके जानी है, तो आपको पता है बीच में गोली मार देंगे, या फिर उसको उठा के ले जाएंगे बंदे को। ठीक है, आपको पता है पहले घोड़ों से जाती थी, वो पढ़ते थे राजा महाराजाओं के यहाँ पे, लिस्ट पढ़ते थे कि ये संदेश आया है ना। तो प्रॉब्लम होती थी कि वो संदेश बीच में ही कई बार बंदे को ही मार देते थे, या फिर वो डैमेज कर देते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या शुरू किया बेसिकली, टू कम्युनिकेट टू डिफरेंट मे बी द आर्मी यूनिट्स और आर्मी नेटवर्क, या जो भी उनकी डिवाइसेस थी उनको कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने कनेक्टिविटी शुरू करी। सिमिलरली क्या हुआ आपका, कि आपकी कोई यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में कोई लोग रिसर्च कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग सम मे बी सम न्यू टेक्नोलॉजी और समथिंग, एंड दे हैव लॉट ऑफ डेटा विद देम, and they don't want to lose that data, है ना। and then there is another university sitting in the different country or different maybe state, or maybe in the same city but very far away. So they are connected, they want to get connected with each other, and they want to share the information कि इन्होंने जो रिसर्च करी है वो मुझे बता दो, वो डॉक्यूमेंट यहाँ शेयर कर दो, और जो मैंने रिसर्च करी है इनको। तो ऐसे ऐसे करते क्या हुआ, देर आर लॉट ऑफ मल्टीपल कंपनीज या लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, ये क्या बन गया बेसिकली, ऐसे ऐसे करते ही बहुत सारे नेटवर्क्स जब आपस में कनेक्ट हो गए, बड़े बड़े कंपनी के नेटवर्क, वैसे ही आरपानेट आया, उसके बाद आपका आईबीएम आ गया, उसके बाद आपका एचपी आ गया। तो ये सब लोगों के खुद के नेटवर्क्स थे। ठीक है, मैक आ गया, है ना। तो ये सब लोगों के खुद के नेटवर्क से देन दे वांट टू गेट कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये क्या होता गया बेसिकली, दे आर स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड विद ईच अदर एंड मेड अ network, and that network becomes the internet because they are sharing the information with everybody, राइट। पब्लिकली इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इंटरनेट बन गया, बिकॉज वी आर। बट इंटरनेट के पीछे क्या है, वेब ऑफ नेटवर्क ही है। बहुत सारे लोगों का नेटवर्क नहीं होता तो इंटरनेट नहीं होता। गूगल भी किसी ने खोला हुआ है ना, अगर वो बंद कर देगा तो क्या इंटरनेट रिसर्च सर्च करोगे आप। ठीक है, तो सिमिलरली दैट इज अ पर्टिकुलर नेटवर्क विच इज सिचुएटेड, विच इज फिजिकली प्रेजेंट समवेयर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने सर्वर को, जब अभी जो मेरा कंप्यूटर है मैं उसको बना देता हूँ कि मेरा games.com का सर्वर है, और मैं आपको games.com की वेबसाइट देता हूँ, देन एवरीबडी इज यूजिंग माई सर्वर इटसेल्फ। तो डेटा कहाँ पे पड़ा है, मेरे पास, राइट। एंड आई एम यूजिंग दिस, आई एम पब्लिशिंग दिस डेटा टू एंटायर कंट्री। मैं सबको बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये डेटा यूज कर लो। क्लियर। तो दैट इज व्हाट योर इंटरनेट, व्हेन मल्टीपल नेटवर्क्स गेट्स कनेक्टेड विद ईच अदर, या वेब ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड द इंटरनेट। क्लियर है सबको यहां तक? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Now, what is another thing is, what is intranet? सर इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है जिसमें कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। Anyone else? सर जो हमारा लोकली चलता है सर उसको इंटरनेट कहते हैं सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? सर जैसे ही कॉलेज का खाली वो कम्युनिकेशन पूरे कॉलेज के अंदर होता है, बस उसके बाहर नहीं। Correct. Anything else? Sir, company network. Just like a home network. Just like a home network? No. Sir, company network. देखो, इंट्रानेट भी कहाँ से आया है, बेसिकली इंटरनेट से ही आया है। तो इंटरनेट का मतलब क्या है, whenever, like for example, you have a company, maybe you are working for HP, right? In HP, you are accessing their payroll
वेबसाइट, दिस पेरोल वेबसाइट ये कंपनी से बाहर चलती है क्या? है ना? नहीं सर। नहीं चलती, बिकॉज दिस पेरोल वेबसाइट विल वर्क ओनली वेन एवर यू आर सिटिंग इनसाइड द दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। तो या फिर अगर हम बात करें कि किसी भी कंपनी का प्राइवेट नेटवर्क विच इज यूजिंग दी www वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि उसमें आपकी जो वेबसाइट है वो कॉन्फ़िगर्ड है, यानी कि इंटरनल जो आपकी कोई भी वेब सर्वर चल रहा है या वेबसाइट चल रही है वो आपके लोकली शेयर्ड है आपके नेटवर्क में, राइट? इट इज नॉट फॉर द पब्लिक यूज, है ना? वो सिर्फ उनके एम्प्लॉयज के लिए यूज होगी या फिर वो जिसको एक्सेस देंगे उनके लिए यूज होगी, राइट? तो ऐसी चीजें जो ऐसी वेबसाइट इंटरनल विच इज वर्किंग इनसाइड अ यूनिवर्सिटी, इनसाइड अ कॉलेज, इनसाइड अ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी वेबसाइट दोज आर वर्किंग इंटरनली टू द नेटवर्क इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रानेट। क्लियर है? जैसे अगर मैं बात सर करूं इसको इंट्रानेट ऐसे का भी सबसे कह बड़ा, सकते हैं ना, ये प्राइवेट नेटवर्क के है। अंदर काम करता है। हाँ, इंटरनेट का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका आर्मी का इंटरनेट, बिकॉज आर्मी वाले इंटरनेट यूज नहीं करते हैं, वो क्या यूज करते हैं? इंटरनेट, बिकॉज उनकी चीजें इतनी क्रिटिकल हैं, अगर वो इंटरनेट पे आ जाएंगे तो फिर उनकी चीजें शेयर हो सकती हैं, तो उनका एक अपना अलग नेटवर्क है और उनकी जो चीजें हैं वो इंटरनली चलती हैं, वो हमारे बाहर नहीं चल सकती। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो लोग रिसर्च करते हैं, जैसे आपका नासा वगैरह है, तो उनकी जो कनेक्टिविटी है वो अलग है, उससे कोई जुड़ नहीं सकता, क्योंकि उससे जुड़ गया तो हैकिंग कर लेगा। जैसे हमारे इंटरनेट पे हैकिंग होती है, आपको पता है कि मेरे कंप्यूटर से कोई हैक कर लेगा या आपका कंप्यूटर कोई हैक कर लेगा, बिकॉज हम पब्लिकली कनेक्टेड हैं, पूरे इंटरनेट से कनेक्टेड है सबके लिए, तो वहां पे कोई भी आके किसी को भी हैक कर सकता है। तो ऐसा प्राइवेट नेटवर्क विच इज नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज इज कॉल्ड द इंट्रानेट। क्लियर है? यू कैन से द लोकल और रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क, स्पेशली अ प्राइवेट नेटवर्क यूजिंग www और वेबसाइट इज कॉल्ड इंट्रानेट। क्लियर? सर google.com पे भी तो हम www लिखते हैं, पहला वाला वो समझ तो आ वर्ल्ड वाइड गया। वेब लिखते हैं बच्चे, वो तो एक उसका एक्सटेंशन है ना? तो वर्ल्ड ये WWW का मतलब होता है www में वर्ल्ड फर्क वाइड क्या है? वेब बेसिकली। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ये हम इंटरनली यूज कर रहे हैं कि एक वेब सर्वर बना दिया हमने, ठीक है? अब ये सर्वर क्या होता है? एक मशीन होती है आपकी, यानी कि एक कंप्यूटर नॉर्मली, ठीक है? तो एक हाई एंड कंप्यूटर के अंदर हमने कोई एप्लीकेशन डाली और हमने बोला यार ये एप्लीकेशन ना इंटरनली यूज होगी कंपनी के अंदर, बस दैट इज कॉल्ड द इंट्रानेट। क्लियर? सर जो हाँ सर। प्राइवेट नेटवर्क पे चल जो भी एप्लीकेशन प्राइवेट नेटवर्क पे रन करती है उसे हम लोग कह Internally. सकते हैं इंटरनेट, Correct, राइट correct. सर? Internally, any application, any website, anything which is running internally is not used for public use. It is only for their employees or either their whatever the employees are there or whatever उनके जो internal लोग हैं उनके लिए use होती है. It is called the intranet. Correct? हाँ राइट सर, सर। दिस इज अंकित सिंह दिस साइड, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। हम्म। सर बोलो। मेरा कुछ डाउट था, मैंने मैसेज भी किया है, आपने अभी सीन नहीं किया, तो सर मैं आपका 2 मिनट ले सकता हूँ क्या? लोकल और रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क स्पेशली या प्राइवेट नेटवर्क, यस करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ बोलो, हेलो क्या सर। लिखा है आपने? सर सर, जैसे कि मैंने ना सर अतुल सर का वीडियो देखा है काफी सारा, और हाँ। उनके ही डेडिकेशन से सर मैंने सीसीएनए का जो भी मेरा एक सर प्लान मैंने डिसाइड किया। एक्चुअली आई हैविंग 9 years of experience in telecommunication and currently I'm in job, बट सर करेक्ट मैंने सर करेक्ट। डिसाइड कि सर नेटवर्किंग के थ्रू भी सर मैं अपना एक अलग सर क्या बोले इसको, जैसे सर आईटी के सेक्टर में सर मैं करेक्ट, आई अपना आपको मूव अंडरस्टैंड। देखो करने जा टेलीकॉम रहा का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन इट्स गुड, ठीक है? जब आप जी नेटवर्क जी पढ़ोगे तो आपको और डिटेल में चीजें समझ आएंगी, इट विल वर्क फॉर यू, इट विल वर्क इन योर फेवर, है ना? तो वो अच्छा ही रहेगा यस आपको सर। भी। बट सर मैं एक लंबे समय से मैं सर को फॉलो कर रहा था, बट सर कुछ अपने प्रॉब्लम की वजह से सर मैं कोई बैच ज्वाइन नहीं कर पाया था। नो फाइनली सर प्रॉब्लम, मैंने नो प्रॉब्लम। डिसाइड किया कि नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम सर अपना एक आता है एनडब्ल्यू किंग्स की तरफ से, करेक्ट तो करेक्ट। सर मैंने उसके लिए सर फर्स्ट, वो तो मेरा सर रोड मैप है आगे का, तो सर मैंने फर्स्ट ही सीसीएनए का बैच लिया था, एक दूसरे बैच में था, वहां पे मैं थोड़ा सा कंफर्ट नहीं था, तो मैंने इधर के लिए मूवमेंट की बात की थी। नो तो प्रॉब्लम, सर नो प्रॉब्लम। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे सर अतुल सर गाइड्स करते हैं, जो मैंने उनको बहुत सारा वीडियो देखा है, जैसे सर टीचिंग के साथ साथ जैसे हमारे कैरियर प्लानिंग का, रिज्यूमे वगैरह में सपोर्ट करने का, तो क्या सर आपके थ्रू ये चीजें हमें यहाँ मिलेगी या कोई और प्लेटफॉर्म पे हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे? बच्चे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है? अतुल जो हाँ है जी। वो नेटवर्क किंग्स के ओनर है, राइट? और मैं जो यस है सर। पढ़ाता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और मैं पार्ट टाइम पढ़ाता हूँ, मतलब मैं तो जॉब करता हूँ, सुबह शाम को आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना? हाँ सर सर, मैंने आप थोड़ा कहाँ लेट जॉब ज्वाइन किया करते था, हैं आपका सर? नाम भी नहीं।
हाँ, मैं यहाँ चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ बेसिकली, ठीक है। ओके। तो मैं यहाँ पर आपको उतना टाइम में भी नहीं दे पाऊँ जितना वो दे पाएंगे मे बी, ठीक है। लेकिन आपको सारी जो गाइडेंस है वो नेटवर्किंग से मिलती रहेगी कंटिन्यूअसली, और मेरी क्लास में आपको ये मिलेगा कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, ये मिलेगा कि आपको इम्पोर्टेंट, देखो कुछ भी कर लो, कोई भी चीज़ कर लो, मैं सब लोगों को बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। आप अगर याद रखो, इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में आपके पास सामने कोई राउटर दे के देगा, आपको राउटर पकड़ाएगा और बोलेगा कि भाई इसको कॉन्फ़िगर करके दिखा, नहीं। आपसे क्या पूछा जाएगा? एक्सप्लेन। आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन डीएचसीपी, आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन हाउ टू कॉन्फ़िगर अ राउटर, राइट। तो आपको बताना आना चाहिए कि कहाँ पे कैसे चीजें होंगी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल आना आता होगा तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब आपको थ्योरेटिकली अगर नहीं पता होगा, कंसेप्ट नहीं पता होगा, तो आप उसको ट्रबल शूट नहीं कर सकते, आप उसके पैकेट कैप्चर करके उसको पढ़ नहीं सकते कि क्या हो रहा है बेसिकली रियल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते किसी भी चीज की, और जब आप ये सब नहीं कर सकते तो आप नेटवर्क बना भी नहीं सकते। तो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप सब लोगों को बता रहा हूँ, इट इज नॉट कि उनका क्वेश्चन था, इट इज ओनली थिंग इज योर कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। कंसेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सा प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, कैसे, ऑब्वियसली हम लोग पहले समझेंगे फिर प्रैक्टिकली भी करेंगे, है ना। वो आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, 10 बार आप देख सकते हो, वो प्रैक्टिकल आप दोबारा से अपने आप भी करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, वो सब आप करोगे, प्रैक्टिकल भी हम करेंगे साथ साथ, बट पहले कंसेप्ट समझेंगे, और कंसेप्ट ही हमें इंटरव्यूअर को बताना है। अगर मैं अभी इंटरव्यू देता हूं तो मेरे से वो क्या पूछेगा बेसिकली, मेरे को अगर 18 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे थोड़ी ना बोल देगा भाई एक्सपीरियंस है आ जाओ। मेरा इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू में मुझे पूछेगा कि डे टू डे क्या करते हो आप, करंट जॉब में आपकी क्या कौन कौन से टूल यूज करते हो। फिर वो पूछेंगे फायरवॉल का बताओ कि फायरवॉल काम कैसे करती है, या राउटर पे मेरे को बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है, हाउ टू कॉन्फ़िगर द बीजीपी। या फिर वो कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज मैं एक्सपीरियंसड हूँ, तो पूछेंगे कि मेरे को ये इशू आ रहा है, टेल मी हाउ इट इज वर्किंग। तो अगर मेरे को यही नहीं पता होगा कि बीजीपी के पैकेट कौन कौन से हैं, बीजीपी काम कैसे करता है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको। तो मुझे तो उसकी ट्रबल शूटिंग भी नहीं पता ना। तो मैं ये बस समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, ठीक है, देन वी विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली प्रैक्टिकल कैसे करना है। कमांड्स इजी हैं, कमांड्स इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कमांड तो आप गूगल से देख के भी कर सकते हो, बट मेनली ये पता होना चाहिए उस कमांड से होगा क्या और वो कैसे यूज होगी। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लियर योर कंसेप्ट्स, रिमेंबर द थिंग्स, ठीक है, देन ओनली यू कैन क्लियर द इंटरव्यू। अनटिल अनलेस आपको इंटरव्यू क्लियर करना है और आपको पैसे लेने हैं, है ना। और पैसे आपको जब ही देगा जब आपको अपने आप को बेचना आता होगा, और अपने आप को कब बेचोगे, जब आपको कुछ पता होगा। सिंपल सी बात, क्लियर है सबको? सर नहीं सर, बिल्कुल एग्री मेरा सर। सर जो कंसर्न मेरा सर जो कंसर्न ये था ना सर, कि जैसे अतुल शर्मा सर जो गाइड करते हैं, जैसे आपने बताया कि यू आर डूइंग ए जॉब हियर, तो सर क्या उस तरीके का गाइडलाइंस और ये सब चीजें के लिए, जैसे आप बता रहे हैं कि एनडब्ल्यू किंग्स सपोर्ट करेगी, तो सर कहाँ जाना चाहिए? जैसे मैं दूसरे बैच में था, मैं ये फेस कर रहा था कि वहां पे बस मुझे जो भी चीज मिल रहा है, केवल मुझे लर्निंग का ही पॉइंट्स मिल रहा है, बाकी चीजें डिस्कस नहीं हो रही है। तो सर जैसे कि मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि सर एक गाइडलाइंस बहुत बड़ी चीज अच्छे, होती है, गाइड तो जैसे मैं कि कर मेरे ही रहा हूँ ना, यहाँ पे गाइड ही तो करूंगा आपको। यू विल स्टे हेयर, नहीं, जैसे सर आप यू विल आपने फाइंड, सर बोला ना कि अतुल शर्मा की लिसन तरह टू मी, नहीं कर लिसन टू मी। सकते उसके लिए एनडब्ल्यू। अब यस। आप यहाँ पर 2-3 दिन क्लास लगाओ, आपको समझ आ जाएगा कि अतुल सर क्या पढ़ाते हैं और मैं क्या पढ़ाता हूँ। ठीक है, वो देखो सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सर मैं ये आई नहीं बोल रहा एग्री हूँ कि विद यू सर, पहले हाँ, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा करेक्ट, ना तब तक करेक्ट। तो चाहे मैं आपका ये नहीं बोल रिज्यूमे रहा हूँ कि कितना भी उनका अच्छा पढ़ाने का कुछ हो। वो गलत पढ़ा रहे हैं या उनको कम आता है या ज्यादा आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। मेरा नहीं कहने का सर, मतलब मेरा कंसर्न बेसिक, पढ़ाने का सर नहीं था मेरा, अगर आप पॉइंट समझ रहे होंगे सर, मैं मेरा कुछ समझ गया डाउट बच्चे, जो मैं था। समझ गया, दैट इज Please व्हाट sir, व्हाट आई एम wrap up सेइंग these इज, things. राइट, मैं समझ गया आपकी बात जो आप बोल रहे हो। गाइडेंस, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्या करना चाहिए, कहाँ से आप डॉक्यूमेंट ले लो, यहाँ से ये पढ़ लो। और आपके पास वीडियोस तो हैं ही हैं अतुल सर की, वहां पे देखो क्या दिक्कत है आपको। और अगर और भी कुछ दिक्कत आएगी, देखो मैं नेटवर्किंग में तो बैठा नहीं हूँ कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो वो आप वही चीज सर, एग्जैक्टली मुझे यही चीज जानना था कि अगर नेटवर्किंग में मुझे वो सपोर्ट लेनी है, तो क्या आप गाइड करेंगे कि उसमें कैसे जाना है? क्योंकि डायरेक्ट तो बिल्कुल सर हम बिल्कुल। आपके टच आप में देखो, मेरे पास उनका कोई भी एक्सेस नहीं है, आई डोंट हैव एनी हैं। काइंड ओके। ऑफ नेटवर्किंग एक्सेस, वो उन्हीं के पास है, ठीक है। वो बता सकते हैं ओके। कहाँ पे, तो आपको अपने काउंसलर से, सर गौरव ये सर वही वाला ओके। क्वेश्चन हो गया ना, कनेक्ट। वो जॉब प्लेसमेंट वगैरह को लेके, हाँ, वो वो तो प्लेसमेंट तो नेटवर्किंग मैं नहीं वाले दे कर सकता ना देंगे। यार, वही मैं बोल रहा वो हूँ, वो आप नेटवर्किंग नेटवर्किंग वाले से बात कर करेंगे। सकते हो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। We are अंडरस्टूड here to सर। ओके study, सर, थैंक sir. Please. करेक्ट। एनीवे, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, नेक्स्ट थिंग इज एक्स्ट्रानेट। सुना किसी ने नाम? पहली बार सुन। एक्स्ट्रा नेट। No, sir.
नो सर। नो सर। तो जो बोल रहे हैं हमने सारी नो वीडियोस सर। की हैं। इंटरनेट सर सर मेरे को जोक प्राइवेट याद नेटवर्क आ गया। होता है। एक्स्ट्रा नेट हेलो बताओ क्या होता है, व्हाट इज एक्स्ट्रा नेट? सर वो 2 GB सर एक्स्ट्रा आवाज दे आ रही? देंगे। यस यस। सर एक्सटर्नेट प्राइवेट नेटवर्क वैसे तो कुछ नहीं होता, पर एक प्राइवेट नेटवर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे वेंडरों से अपने रिसोर्सेज शेयर करा के अपने नेटवर्क में करेक्ट करेक्ट, काइंड ऑफ ठीक है। देखो, एक्स्ट्रा नेट इज नथिंग बट अ प्राइवेट नेटवर्क विच इज यूज टिपिकली यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड टू शेयर देयर ओनली अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज इन्फॉर्मेशन टू अदर स्टेक होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ज्वाइन की है कंपनी IBM, ठीक है, बट आपको प्रोजेक्ट मिला है किसका? विप्रो का। समझ रहे हो? तो यस बेसिकली क्या हो रहा है कि विप्रो ने अपनी कोई स्पेसिफिक काम करवाने के लिए IBM को एज अ थर्ड पार्टी वेंडर चुन लिया, और आप उनके ऊपर काम कर रहे हो, बट आप काम कर रहे हो विप्रो के लिए, बट आपकी ज्वाइन जो कंपनी है वो IBM है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जब आप किसी का इंट्रानेट किसी और कंपनी में यूज करते हो, या किसी और कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, वेंडर्स के लिए कोई वेबसाइट को आप शेयर करवा देते हो, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट, ठीक है। यानी कि मेरा एक कंपनी का नेटवर्क था इंटरनल, कोई वेबसाइट चल रही है, और मुझे पता है कि ये वेबसाइट मैं पार्शियली शेयर कर रहा हूँ किसी और के साथ, किसी और कंपनी के साथ, या मेरे वेंडर के साथ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट दिस वर्क डन बाय दैट वेंडर, ठीक है। तो वो वेंडर जो काम करेगा वो इस वेबसाइट को खोल रहा है, क्योंकि वो आपका इंट्रानेट वो एक्सेस कर पा रहा है पब्लिकली भी, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रानेट। सर गवर्नमेंट भी इसमें why एग्जाम्पल won't it आएगा ना? called करेक्ट सर करेक्ट। वो नोटिफिकेशन जॉब बाकी उनका प्राइवेट तो रहता है। बेसिकली वही हो गया बेसिकली कि आपका यहाँ पर, अच्छा इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक तरीका ये भी है, जैसे आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया एंड यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, है ना, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो आप, देन व्हाट यू आर डूइंग इज यू वांट टू यूज देयर इंटरनल नेटवर्क टू एक्सेस देयर सर्वर्स और मे बी देयर डिवाइसेस, राउटर्स एंड ऑल, देन व्हाट यू नीड द VPN कनेक्टिविटी विद दैट कंपनी। अपनी कंपनी के साथ आपका VPN होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस, राइट, है ना, तभी आप उसके इंटरनल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं जी कर सर। पाओगे। द रीजन इज बिकॉज दे हैव गिवन यू एक्सेस, अपने आप नहीं मिला है वो, उन्होंने आपको दिया है, वो VPN का एक्सेस दिया है, यूजर नेम पासवर्ड दिया है, तभी आप उनकी इंटरनल एक्सेस कर पा रहे हो ना। तो जी किसी की भी इंटरनल इंफॉर्मेशन जब किसी और थर्ड पार्टी वेंडर या ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, कॉल्ड दी एक्स्ट्रानेट। सर ये सर डेफिनेशन आप इसको फिर से बताओगे? Correct. Whenever we use a company's intranet in the another third party vendor or another organization for a time being or for a specific organization or for specific work is called extranet. ओके Right? सर। सर जैसे हाँ सर जैसे SAP यूज करते हैं हम, थर्ड पार्टी वेंडर को भी देते हैं ना SAP यूज करने के हाँ लिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। सर ठीक है सर। रिमोट नेटवर्क भी यूज हो सकता है क्या एक्सटर्नेट? क्या यूज हो सकता है? रिमोट नेटवर्क जो होता है, जैसे रिमोटली हम हाँ, कनेक्टिविटी वर्क फ्रॉम होम हाँ, वाला वही एग्जाम्पल वही बोला ना रिमोट सर ने। रिमोटली कनेक्ट करोगे ना आप, दैट इज वाई। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर कंपनी एंड यू हैव अ राउटर ओवर हियर एंड you are sitting at your home, you have a VPN connection, and then you cannot access these router directly, right? You can access only whenever you have a VPN connectivity, then only you can take the remote of this router or a specific server, है ना। तो वो आप जब ही ले पाओगे जब आपको एक्सेस होगा, तो एक्स्ट्रानेट का एक्सेस होगा, आपको अलाउड होगा, then only you can take the access, right? Got it? यस सर। So this is how the small यस सर terms, यस। ये छोटी छोटी चीजें हैं, नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्किंग। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि एज अ फ्रेशर पीपल विल आस्क यू दीज थिंग्स इन द इंटरव्यू, तो सर इंटरव्यू एक में चीज आपको थोड़ा सा ध्यान सर रखना। एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं, ये हाँ कोर्स जी, करने के बाद मतलब क्लाउड में भी हमको हेल्प मिल सकती है अगर जैसे कोई क्लाउड ऑब्वियसली का बच्चे, कोर्स करना क्लाउड इज चाहे? नथिंग बट अ फिजिकल डिवाइस इटसेल्फ। हम बात करेंगे डिटेल में, क्लाउड वाला चैप्टर है हमारे पास, वो हम आपको उसमें सब बताएंगे आपको डिटेल में, ठीक है। राइट। तो सर एक हाँ जी। हेलो हम्म। सर, वो DOD का क्या था? अर्पनेट में आपने लिखा था DOD, तो उसका थोड़ा DOD था, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ डिफेंस। डिफेंस। वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सबसे पहले इंटरनेट का मैं यानी बस कि नेटवर्किंग यूज करा था बेसिकली ना। जी सर। ओके तो गाइज बेसिकली अभी देखो, अच्छा अभी हम चलते हैं वापस अपने एक और चीज पे, 5 मिनट और ले लेते हैं चीजों को। तो बेसिकली ये बताओ कि हाउ हाउ योर इंटरनेट इज वर्किंग, या हाउ योर कनेक्टिविटी इज हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर सिटिंग एट योर होम, राइट,
and you are using the internet. तो अच्छा, आपको कैसे लगता है कि ये यूएस में पड़ा हुआ है अमेजोन का सर्वर, ये पड़ा हुआ है मे बी यूएस में ही गूगल का सर्वर, ये पड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में किसी और का सर्वर, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से डाटा कैसे एक्सेस कर पा रहे हो सर इन हम चीजों को? इंटरनेट को जाते, इंटरनेट उनको जाता है। इंटरनेट सर क्या? इंटरनेट ISP सर्विस प्रोवाइडर, थ्रू ISP। इंटरनेट हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली क्या है ना, देखो इंटरनेट अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि मैं google.com या amazon.com का जो सर्वर है, मैं उस तक तो पहुंच ही नहीं सकता डायरेक्टली। तो मैं, मेरे घर से कोई तार थोड़ी नहीं ना सर। जा रही है वहां से वहां तक। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेंड माय इंफॉर्मेशन टू ISP. ISP ISP is what? Internet Service Provider. सर्विस And there are सर्विस different types of प्रोवाइडर। ISP. There are three types of ISP: ISP 1, ISP 2, ISP 3. Basically tier 1, tier 2, tier 3. ठीक है, tier 1, tier 2, tier 3 kind of ISPs are there. So we'll talk about it. तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो कनेक्टिविटी है वो आपके ISP से होगी। और ISP कौन है? फॉर एग्जांपल आपके घर में एयरटेल, जियो। इंटरनेट है, ठीक है, एयरटेल, जियो जियो का है, या होगा। फिर कोई लोकल है, नेट होम है, नेट प्लस है, कुछ इस तरह से जो लोकल वेंडर्स होते हैं वो भी होते हैं बेसिकली। जी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये सारा नेटवर्क पहले आपकी कनेक्टिविटी जाएगी ISP के पास, एंड देन उसके बाद पता है किसी को क्या होगा? ISP से वहां पे जाएगा जो हमने सर्च किया था google.com। डायरेक्ट नहीं, वो सबमरीन केबल। राउटर के थ्रू जाएगा सर वो। सर किसके थ्रू? सबमरीन सर केबल, वरुण ISP सर। वो ISP के दूसरा पास ISP पब्लिक बोलिए IP होता है। DNS के थ्रू जाएगा। आप पब्लिक फाइबर आईपी सर, भूल जाओ, फाइबर के थ्रू सर। हाँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि सर हमारा जो ISP पे जाएगा तारों से कनेक्शन, और फिर हमारा या सैटेलाइट पे जाएगा, सैटेलाइट से फिर दूसरी कंट्री में जाएगा, फिर वो amazon.com को जाएगा। तो देर इज नो सैटेलाइट कनेक्टिविटी फॉर द नेटवर्क इंटरनेट। मैं आपको भी दिखाता भी हूँ बेसिकली। सर फिर अगर हम कुछ डेटा भेजते वो ISP सारा देख लेगा हमारा डेटा नहीं फिर नहीं, तो? वो भी मैं बताता हूँ बेसिकली कैसे। तो रीजन सबसे पहले हमको ये समझना है कि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड कैसे है, हाउ ओके सर। एंटायर वर्ल्ड इज कनेक्टेड, हमको वो समझना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपकी जो कनेक्टिविटी है, आप तो अपने ISP को पैकेट दे देते हो, बट हाउ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ISPs अवेलेबल। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ ISPs अवेलेबल, और ये सारे ISP आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये ISP एक लोकेशन पे नहीं है, मल्टीपल लोकेशंस पे हैं, अलग अलग जगह हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन चल रही है वो पूरी वायर्ड है, कोई भी सैटेलाइट से नहीं चल रही है। और वायर्ड कैसे? पूरे वर्ल्ड में अंडर सी केबल्स बिछी हुई हैं, जो हम सबमरीन पढ़ेंगे केबल केबल सर ना? टाइप में। हाँ, केबल सबमरीन टाइप हम केबल। पढ़ेंगे। तो केबल टाइप्स में हम पढ़ेंगे कि बेसिकली कितने टाइप की केबल होती हैं, और फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइबर केबल इज यूज, मैं दिखाऊंगा अभी आपको फाइबर केबल कैसे होती है बेसिकली। तो फाइबर केबल से ना पूरे नेटवर्क में जाल बना हुआ है आपका पूरे वर्ल्ड में। यानी कि आप ये लगा लो कि जितनी बार आप धरती के चक्कर काट के आओगे ना, उससे 1000 गुना किलोमीटर केबल बिछी हुई है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो अगर ये सर केबल इट टूटती इज है, कॉल्ड एज सबमरीन केबल अरे लाइक भाई सबमरीन सुन केबल, लो ना करेक्ट पहले। करेक्ट करेक्ट, दैट इज कॉल्ड द सबमरीन केबल। तो टीयर 1 सर्विस प्रोवाइडर, टीयर 2 सर्विस प्रोवाइडर, टीयर 1 सर्विस प्रोवाइडर है हमारा टाटा। टाटा जो आपका इंडिकॉम है, जो पहले इंडिकॉम के नाम से था, वो आपका टीयर 1 सर्विस प्रोवाइडर है। सर टीयर 2 टाटा सर्विस कम्युनिकेशन है ना सर? हाँ, टाटा कम्युनिकेशन। हाँ, AT&T आपका बाहर का है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका ये टीयर 2 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आते हैं, जैसे आपका एयरटेल और आपका हो गया जियो। ठीक है, तो ये सारे आपके टीयर 2 सर्विस प्रोवाइडर हैं। और टीयर 3 सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं कौन से? जो आपके लोकल वेंडर्स होते हैं, जैसे नेट प्लस, ब्रॉडबैंड प्लस, ब्रॉडकॉम प्लस, या फिर कोई एस्टो इंटरनेट वगैरह वगैरह। देयर आर लोकल वेंडर्स। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके लोकल सर इसका वेंडर्स, डिफरेंस क्या है सर? हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि जो लोकल वेंडर्स हैं वो बड़े लेवल पे उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। मे बी हो सकता है कि उसी पर्टिकुलर सिटी में उन्होंने अपनी कुछ कनेक्टिविटी बना रखी है, जैसे केबल होता है ना, केबल टीवी, तो वो अपनी तारें बिछा देते थे। तो सिमिलरली उन्होंने क्या किया कि अपनी तारें बिछा रखी हैं, बट मेन कनेक्शन वो कहाँ से ले रहे हैं? या तो टीयर 1 वालों से ले रहे हैं या टीयर 2 से ले रहे हैं। तो हो सकता है टीयर 1 वालों ने उनको एक 200 या 2000 GB की लाइन दे दी हो, और उसके आगे उनके कस्टमर हैं जो 40 GB का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई 10 GB का कर रहा है, कोई 20 GB का कर रहा है, तो वो उनके आगे कस्टमर हैं। लेकिन जो लोकल वेंडर है उसकी डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो दे आर टेकिंग द कनेक्टिविटी फ्रॉम टीयर 1 और आइदर द टीयर 2। ठीक है, तो वो और टीयर 2 जो सर्विस प्रोवाइडर है, देखो आज की डेट में जो हम टीयर 1 बोलते हैं, तो टीयर 1 जो सर्विस प्रोवाइडर है ये क्या करता है, ये पूरी जो आपकी वर्ल्ड वाइड केबलिंग बिछी हुई है उसमें हेल्प करता है, और यही सारा देखता है। टाटा कम्युनिकेशन इज ओनली द
service provider which is seeking all the submarine cables and working and all. एंड एयरटेल और जियो जो है ना आपका, वो भी वैसे एयरटेल तो नहीं, जियो आपका उतरा है कि टीयर 1 का काम भी वो थोड़ा करता है। बेसिकली उसकी भी कुछ ना कुछ वायर्स ऐसी हैं जो कंट्री टू कंट्री समंदर के अंदर बिछाई गई हैं बाय जियो एज वेल। बट एयरटेल, बीएसएनएल, ये सब आपके लोकल सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ये टीयर 2 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। और इनसे जो कनेक्टिविटी लेता है वो कौन लेता है? लोकल वेंडर लेता है। तो जब भी उनका इंटरनेट थोड़ा सा सस्ता होता है, राइट, और इनका थोड़ा सा महंगा होता है। तो सिमिलरली बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो आपका टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। नॉर्मली हम लोग घरों में टीयर 2 और टीयर 3 से ही कनेक्टिविटी लेते हैं, टीयर 1 से कभी भी कनेक्टिविटी नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि टीयर 1 काम कर रहा है कंट्री टू कंट्री, मल्टीपल कंट्रीज, है ना, उसका काम उसका है। तो अगर वो वेंडर अपने मतलब लोकल बंदों को देने लग जाएगा तो फिर उसके पास प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जो आपने कभी नहीं देखी होगी किसी भी वीडियोज में, ठीक है। और मेरी क्लास में वो मिलेगा जो वीडियोज में नहीं मिलेगा यूट्यूब में। हेलो हाँ जी, हेलो सर, बोलो टाटा का भी तो एपीटीएक्स का प्रोजेक्ट है, वो भी तो सर लोकल में सर्व करते हैं, जैसे वो जियो वो आते हैं, वो छोटे छोटे आ जाते हैं प्रोजेक्ट, बट टाटा कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली। तो इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ पहले यहाँ से। ये देखो, बेसिकली आपकी पूरे वर्ल्ड में आपकी केबल्स कैसे बिछी हुई है, देख रहे हो यहाँ पे आप, ये देख रहे हो इंडिया, और ये जो आप केबल देख रहे हो सब फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, जितनी भी आप देख रहे हो दीज आर ऑल फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और आपको दिख रहा है कि ये समंदर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टाटा कम्युनिकेशन, आपका देखो ये लिखा हुआ है सी कॉम टाटा टीएनजी यूरो एशिया। कहीं आपको इसमें एयरटेल का नाम नजर आ रहा है? कहीं आपको जियो का नाम नजर आ रहा है इसमें? ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा जो टाटा जो हमारा टाटा कम्युनिकेशन है सी कॉम, यही आपकी देखो, और ये लोकेशन पता है कौन सी? बैंगलोर आपका जो ये, सॉरी मुंबई, जो मुंबई में आपकी जो पोर्ट है, यानी कि पोर्ट मतलब बंदरगाह, यानी जहाँ पे पानी होता है, वहां पे जो मेन मुंबई है, मुंबई स्टेट से आप देख सकते हो कितनी सारी फाइबर ऑप्टिक केबल जा रही हैं। तो टाटा इंडिकॉम ने बिछाई है, कुछ कुछ जियो ने भी बिछाई है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाली केबल है एक, बेसिकली उस पर जियो नहीं लिखा है, ये वाली सी मी वेव जो है ये वाली आपकी जियो की है, इंडिया एशिया एक्सप्रेस वाली आपकी जियो की है, ठीक है। तो अलग अलग ये जो केबल जा रही है, इसका मतलब एक केबल, और इन एक केबल्स के अंदर ये जो इतनी केबल आपको नजर आ रही है, इसके अंदर मल्टीपल केबल्स हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा बेसिकली, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे और डिटेल में बेसिकली। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर आपकी सबमरीन केबल्स के अंदर बहुत सारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं। आपका जो सारा इंटरनेट आता है ना, आपको इंडिया में इंटरनेट कहाँ से आता है? ये मुंबई पोर्ट से। दूसरा इंडिया में इंटरनेट आता है आपका ये चेन्नई वाली जगह से, ठीक है। ये 2 लोकेशंस है जहां पे आपका इंटरनेट आता है बेसिकली, और ये वाली कोची वाली जगह से भी आता है, ठीक है। और बाकी श्रीलंका हो गया, ये सब हो गया, इनको हमारे यहाँ से इंटरनेट जाता है। इवन पाकिस्तान वाली साइड को भी हमारे यहाँ से इंटरनेट जाता है। बहुत सारी तारें हैं, ये जो सारी तारें हैं ये रिडंडेंट वायर्स हैं, मतलब कोई फेल हो गई तो ये इमीडिएटली इसको रिपेयर भी करते हैं सबमरीन वाले, ठीक है। तो जो सबमरीन की जो इन्फॉर्मेशन, जो जैसे टाटा कम्युनिकेशन है, तो उनकी जो कोई वायर खराब हो गई या कुछ हो गया तो उनके पास यहाँ पर अलर्ट आएगा और दे विल रिपेयर दैट केबल, ठीक है। तो और इनको रिपेयर करने का जो खर्चा है वो लाखों में, करोड़ों में, और ये जो केबल्स को बिछाने का खर्चा है वो भी लाखों करोड़ों में है। तो कहने का मतलब, यू आर सिटिंग ओवर हेयर, मे बी इन हरियाणा, मे बी इन यूपी, एक्सेसिंग द इंटरनेट, योर ऑल डेटा इज गोइंग थ्रू योर लोकल आईएसपीज। यहाँ पर आपके हो सकता है यूपी में आपका एयरटेल वाला बैठा है ना, गुजरात में बैठा है, इंडिया में यहाँ पे बैठा है, तो वो आपका सारा काम पैकेट फेंक देगा ये मुंबई पोर्ट के ऊपर। और मुंबई पोर्ट से होते हुए कौन से रास्ते से जाएगा वो हम नहीं बता सकते फिलहाल, ठीक है। तो कोई भी रास्ते से होते हुए, मान लो यूएस में पहुंच गए, ये आ गए यूएस में, यहाँ से ये तारों से होता हुआ यूएस के सर्वर पे आया, यहाँ से गूगल की रिक्वेस्ट लेकर के वहां पहुंच गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन वो यूएस जाके ही ले। देयर आर डेटा सेंटर्स, यानी कि देयर आर सर्वर्स जो आपके इंडिया में भी रखे हैं। किसके? अमेजोन के, गूगल के, उनके सर्वर्स उन्होंने यहाँ इंडिया में भी रखे हुए हैं अलग अलग डेटा सेंटर में। जैसे बैंगलोर में डेटा सेंटर में रखा हुआ है, यूपी में डेटा सेंटर्स हैं काफी सारे, ठीक है। तो अलग अलग जगह डेटा सेंटर्स हैं, डेटा सेंटर्स में उनके सर्वर्स रखे हुए हैं, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन आती है, और पूरे वर्ल्ड में भी आपकी इंफॉर्मेशन आती है बेसिकली। जो मतलब आपके कहीं से भी इंफॉर्मेशन आती है वो इन्हीं वायर्स के थ्रू आती है। तो देयर इज नथिंग, कोई हवा में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और आईएसपी क्या चीज है? ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, ये टॉप 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 करके, ये प्राइमरी आईएसपीज हैं, कुछ इसमें सेकेंडरी आईएसपी हैं, मतलब टीयर 2 आईएसपीज हैं जो ये हैंडल करते हैं। तो ये पूरे पूरे आपकी कंट्री में मल्टीपल आईएसपीज हो सकते हैं, और हर आईएसपी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो केबल आपकी सबमरीन केबल बिछी हुई है, वैसे ही फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी अंडरग्राउंड भी बिछी हुई है, ठीक है, उस कंट्री में, उस जगह पे, ताकि इंटरनली हर एक लोकेशन पे
हाँ, ताकि हर एक लोकेशन पे इंटरनेट सर पहुंच सके। क्लियर है सबको इतनी बात? सर जो जानना था। जी सर। यस सर। यस सर सर एम क्लियर। आई ऑडिबल? बोलो बोलो। अच्छा मैं इंद्रित बात कर रहा हूँ। जो नंबरिंग की है ना, जो 90, 25, 37, 31, ये क्या है, एक बार बता सकते हैं? नहीं, मैं सबमरीन में काम नहीं करता, सर नहीं जस्ट मुझे नहीं पता। ये नंबर्स के बारे में मुझे नहीं पता। सर सबमरीन केबल में नहीं काम करता, वो वहां पे काम करूंगा तो पता लगेगा। सर हाँ जी। सर मैं ये ये पूछना चाह रहा कितने था। कोर की फाइबर यूज करते होंगे सर? 5 कोर। बच्चे अलग अलग होती हैं, एनएम कोर हम पढ़ेंगे सब, टेंशन मत लो। जब हम फाइबर ऑप्टिक बताएंगे आपको, तो आपको मैं हम्म बताऊंगा कि कितने एनएम कोर की फाइबर यूज होती है, मल्टी मोड फाइबर यूज होती है, कि सिंगल मोड यूज होती है। और फिर से बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, जो भी फॉर्मूला हाँ बताऊंगा, जो भी तरीके बताऊंगा, देर इज नथिंग ऑन इंटरनेट, क्योंकि मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैंने कोई अपनी वीडियो कहीं पे डाली नहीं हुई है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, इंटरनेट से हटके मिलेगी। ठीक है सर ठीक सर मैं एक है। चीज थैंक पूछना यू चाह रहा सर। था। हाँ जी। कह रहा हूँ सर कि ये जो केबल, जो भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगी हुई हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे मुंबई लोकेशन पे है, तो करेक्ट। ये केबल्स पर्टिकुलर किसी सर्वर डेटा सेंटर से कनेक्टेड होती हैं, या फिर आईएसपी से, डायरेक्टली? आईएसपी के पास जा रही है ना सब जगह। ये जो छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं ना, यहाँ ये सब आईएसपी बैठे हैं। हर कंट्री का एक मेन आईएसपी होगा, टीयर 1। हर कंट्री में एक से ज्यादा भी टीयर 1 आईएसपी हो सकते हैं। तो हर कंट्री के टीयर 1 पे जाती हैं, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल बात है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट मैनेजमेंट। करते हैं, हाँ राइट सर। सिंपल है ना, मैनेजमेंट है ना, सिंपल। आपका जैसे आपके वही पॉलिटिक्स देख लो, आपके एमएलए है, एमएलए के बाद फिर वो है, फिर वो, मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं पता है हालांकि। तो उसके हिसाब से राइट। होता है आपका, है ना। तो आप ज्यादा जी जी डायरेक्ट जी। प्रधानमंत्री को जाके नहीं बोल सकते ना कि ये हो रहा है। आप अपने एमएलए को बोलोगे, लोकल को बोलोगे, फिर वो आगे पहुंचाएगा। राइट तो सर। इसी तरह से हो तो रहा है वो बेसिकली। डिस्ट्रीब्यूट एज ए डिस्ट्रीब्यूटर समझ लें, ये जो आईएसपी होते हैं उसके अंडर, करेक्ट जैसे टीआर करेक्ट। So टू tier टीआर one थ्री is the है ना? primary one. You can say tier 1 is the primary ISP, those having all the main connectivity available. And tier 2 can have those kind of connectivity, but tier 3 will be the local vendors. Those are getting connection from the tier 2 or either tier 1. ठीक है? यस करेक्ट सर। सर। ओके। जी सर। सर तो ये आप, फिर स्विच कौन से यूज करते होंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? अरे मैंने सबमरीन में काम नहीं कर रहा हूँ। नहीं बताऊंगा वैसे बच्चे सर आपको। बेसिकली मैं हाई एंड स्विचेस होते हैं, बट बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे। मेन इंपॉर्टेंट मेरे को आपको एक आइडिया देना है, बिकॉज यहाँ पर बच्चे जो हैं उनको कुछ नहीं पता है कि रियल में क्या से काम हो रहा है। तो मैं आपका सिर्फ एक दिमाग खोलना चाह रहा हूँ कि रियल एनवायरनमेंट में कहाँ से इंटरनेट आ रहा है, कहाँ से तारे बिछी हुई हैं। इसको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करते जाएंगे कि सबमरीन केबल जी कैसी सर। चलती है ना। हेलो। कैसे कैसे हम लोग एक एक करके हर एक चीज को एक्सप्लोर करते हेलो। जाएंगे, कितना जरूरी है। यस, टेल मी। हेलो सर। हेलो। यस यस, टेल मी सनी। सर ये कह रहे हैं जो ये टीयर 1 है। हाँ सर ये कह रहे हैं जो ये टीयर 1 आईएसपी है, सर इनके हाँ पास सर कहाँ से आता है? मतलब ये भी कनेक्ट रहते हैं ना ना, कि इनके पास कहीं से इनके नहीं पास सर आता कहाँ से ना। आता है? इन्होंने तो खुद ही बिछाई ना केबल। ये टीयर 1 टाटा इंडिकॉम, ये जो टाटा कम्युनिकेशन है, इन्होंने तो केबल बिछाई है ना खुद की। इंटरनेट मैंने आपको बताया ना, इंटरनेट अपने आप में कुछ नहीं है। जब सारी लोकेशन आपस में कनेक्ट हो गई, इंटरनेट बन गया। अच्छा उनके सर्वर आपस में कनेक्ट हो गए, आप इंडिया में बैठे बैठे अच्छा यूएस के ऐसा था। सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, वही इंटरनेट है, नथिंग एल्स। यही तो समझाया मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको, कि जी। हम लोग अगर 10 दोस्त मिल हाँ करके हाँ एक दूसरे से कनेक्टिविटी कर लें, दैट इज नथिंग बट अ इंटरनेट। ठीक मतलब है, बट जिस वो दोस्त ने मुझे सारी केबलिंग बिछा दी वो टीयर 1 बस है। बस हाँ। सिंपल सिंपल, जो केबल्स बिछाएगा, जो इनको मैनेज करेगा, वो टीयर 1 है। टीयर 2 उसके आगे आता है, जो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन से ले लेगा। फिर टीयर 3 बिल्कुल ही लोकल वेंडर हो गए, सिंपल। यस सर। ठीक है, तो वी विल अंडरस्टैंड कि ये सर सबमरीन सर केबल हेलो। दिखती कैसी हैं, कैसे कैसे क्या होता है, वो सब हम इसको कल समझेंगे। ठीक जी है। सर। सर हेलो। हाँ सर जी। सर मैं बोल रहा हूँ, अगर जहाँ पर फाइबर का कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पर माइक्रोवेव है, वहाँ पर कैसे फाइबर तो नहीं है, तो माइक्रोवेव से कनेक्टिविटी कैसे होता है सर? देखो, जहां पर इन केस फाइबर नहीं पहुंच सकती, रीजन कोई पहाड़ है, कुछ है, जो भी रीजन हो सकता है, XYZ, वहां पे टावर्स लगते हैं। जैसे आपका एयरटेल का टावर यूज होता है, जैसे आप घर का सिम काम करता है, वही तरीका है। ठीक है, टावर टू माइक्रोवेव। टावर कनेक्टिविटी होगी उसकी, लेकिन टावर तक क्या जाएगी? तार जाएगी। टावर तक तार जाएगी, टावर के आगे वायरलेस से कनेक्ट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, मान लो ये पहाड़ों पे, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक टावर लगा हुआ है, तो इसकी कनेक्टिविटी हो रही है।
ठीक है, एयर आपकी कनेक्टिविटी एज अ एयर कनेक्टिविटी हो रही है यहाँ से, बट यहाँ तक तार जा रही है, ये तार आई, ये यहाँ चली गई, ये तार आई, यहाँ चली गई, सिंपल। ये दोनों टावर भी इंटरकनेक्टेड होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होगा। यहाँ नीचे इसके राउटर लगे होंगे, जो आपके जियो के टावर लगे होते हैं ना, सब में भी आपके कोई ना कोई डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो उनको भी कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, बट देखो ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री, इट इज वेरी वेरी वाइड। यानी कि अगर मैं खाली फाइबर ऑप्टिक की इंजीनियरिंग करने चलूँ ना, तो सीसीएनए बहुत छोटी है उसके आगे। फाइबर ऑप्टिक की इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ी है। खाली टेलीकॉम का नेटवर्क, जैसे अभी बोल रहे थे कोई टेलीकॉम से है, तो टेलीकॉम का नेटवर्क अपने आप में बहुत बड़ा है बच्चे। टेलीकॉम की कनेक्टिविटी सीखने का ही एक अलग डिफरेंट हिसाब किताब है। लेकिन हमको क्या सीखना है बेसिकली, कि जितने भी ये सर्वर्स, जितनी भी ये कंपनीज हैं, ये कैसे काम करती हैं, कि एंटरप्राइज नेटवर्क वर्क कैसे करता है, उनके राउटर्स, उनकी डिवाइसेस कॉन्फ़िगर कैसे की जाती हैं। ठीक है, हम लोग सारा कुछ तो नहीं सीख सकते ना एक ही क्लास में। सही तो बात है हमारे सर। पास अलग अलग चीजें हैं, सिक्योरिटी अलग है, आपका डेटा सेंटर सीखने के लिए अलग है। ठीक है, और तो अलग अलग चीजें हैं हमारे पास, वॉइस कैसे काम करती है, वीओआईपी कैसे काम करता है, वो अलग है। तो देर आर डिफरेंट थिंग, बट सीसीएनए में हम लोग सब चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे भी, कि क्या चीज होती है एटलीस्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट हम ये समझेंगे कि राउटर्स कैसे काम करते हैं, उन पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। किसी एक कंपनी में आप ज्वाइन किए हो, उन कंपनी का नेटवर्क काम कैसे कर रहा है, एंटरप्राइज नेटवर्क। ठीक है, तो एंटरप्राइज नेटवर्क का मतलब होता है जड़। जड़ का मतलब है जब आप एक घर बनाते हो तो नींव इंपॉर्टेंट है। जब नींव ठीक नहीं होगी तो फिर आगे घर ही नहीं बनेगा। तो सिमिलरली जब तक आपका एंटरप्राइज नेटवर्क नहीं होगा, तो उसके ऊपर डेटा सेंटर क्या चलाओगे, उसके ऊपर कोई डेटा क्या फॉरवर्ड करोगे, जब वही ठीक नहीं है। तो एंटरप्राइज नेटवर्क बनाना कैसे है, उसको ट्रबल शूट कैसे करना है, यही पहले आपने सीखना है। फिर उसके ऊपर सिक्योरिटी लगाएंगे तो सिक्योरिटी लग जाएगी, फिर डेटा सेंटर बनाएंगे तो डेटा सेंटर आ जाएगा, फिर वीओआईपी डिवाइसेस बनाएंगे तो वो आ जाएंगी, वो बाद की बात है। बट पहले हमको स्ट्रक्चर समझना है कि आपका मेन स्ट्रक्चर खड़ा कैसे होगा। यानी कि एक कंपनी मैंने खोली है, उसमें मेरे को कुछ नेटवर्क डिवाइसेस लगानी है, उसको कैसे कनेक्ट होंगी, मेरी ब्रांचेस कैसे कनेक्ट होंगी, पहले मुझे वो अंडरस्टैंड करना है। राइट राइट। यस सर। ठीक है जी सर। गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल कंटिन्यू करेंगे 9 बजे सर हम इसका लोग। नोट बना रहे हैं ना सर? सर कौन बना रहा है नोट? नोट्स बना रहे हैं इसका? अपनी मर्जी है भाई। लेंगे क्या आप जल्दी? बनाओगे बच्चे नोट? सर आप बनाते सर रहे। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरा तरीका अलग है बच्चे पढ़ाने का। ठीक सर है, सर ये तो वाला सर सही मैं है क्या सर। पूछ रहा था, हाँ। सही है सही। सर मैं ये नहीं, पूछ रहा नोट्स था कि नोट्स ये नोट्स का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखता भी जाऊं, और फिर आपको नोट पैड में प्रोवाइड कर सर दूं। एग्जाम भी दे दो फिर नहीं सर, हमारे को हाँ, ले आओ। तो नहीं, बेसिकली देखो ये चीज अच्छी, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बच्चों, कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट मैं इसके खिलाफ इसलिए हूँ। आपको करना क्या है, देखो आप लोगों को क्या करना है, ये क्लास मैंने समझा दी। जब मैंने सीसीएनए करी थी 2005 में या 2008 में, पता नहीं कब करी थी मैंने, तब हमने भी ऑफलाइन करी थी, हमने तो खैर ऑनलाइन नहीं होती थी उस टाइम पे। बट हमने नोट्स अपने खुद बनाए थे, नंबर एक। अब अच्छा, इसका फायदा क्या है, देखो आपने क्लास पढ़नी है, क्लास में एक जो मैंने बता दिया तो इकट्ठा समझ नहीं आएगा। उसके बाद जब आप क्लास को दोबारा वॉच करोगे, बिकॉज आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप लिखो उसको एक एक चीज को, कि क्या मैंने इंपॉर्टेंट बोला, कौन सा मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन बोला, वो आप लिखो उसको। अगर आप उसको नहीं लिखोगे, आपको समझ नहीं नहीं पता आएगा। लगेगा आपको कैसे। क्योंकि जब मैंने सीसीएनए करी थी 3 महीने में मैंने सीसीएनए करी, 2 महीने में उसके बाद मैं भूल गया। उसके बाद मैं बैठा सारा कुछ खोलने, अपने खुद के नोट्स बनाए, एक एक चीज दोबारा पढ़ी, सही रिवीजन बात है किया, सर। तब जाके एग्जाम हुआ। तो सर अगर लेकिन आप, सिलेबस तो मिलेगा ना, कि वो भी नहीं मिलेगा ये एटलीस्ट? सब कुछ मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, बुक मिलेगी आपको, दैट बस सर एवरीथिंग वही वी विल काफी है सर, प्रोवाइड। यही वाला तरीका अच्छा है सर, इसी से समझाइए आप, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। करेक्ट करेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप थोड़ा सा सर मेहनत ये आपको कह रहे करनी हैं पड़ेगी, सर। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जी मैं चाहता हूँ आप हेलो अपने शब्दों में नोट्स बनाएं। यस सर। सर, जी लास्ट क्लास बिल्कुल। में आप बना रहे थे ये इसलिए कर रहे हैं। मैं पूछा हेलो गया। सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर नॉट लास्ट नॉट क्लास का मैंने आपका हेलो 1 सर। महीना हेलो किया हुआ उस सर क्लास में। आप कहाँ पे जॉब करते, कौन सर सी कंपनी में सर? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नेक्स्ट हाँ, क्लास का ये जो लिंक है हमें वो क्या हमें जब एनडब्ल्यू आप की लिंक एनरोल वाले हो देंगे? जाओगे, आपको जूम आईडी का लिंक मिल जाएगा अपने आप ही। तो जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, यू कैन कनेक्ट इट एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन एज वेल। सर आज ये व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था, उस पे अनरोल किया था लेकिन उस पे आया नहीं। हाँ, वो आप ना नहीं सर, अपने ये जो काउंसलर से बात करके एनरोल हो जाओगे, वो आपको अप्रोच करेंगे। मे बी हो ओके सकता है, सर। जैसे आज वेंसडे है ना, उन्होंने तो हो बोला था सकता 1-2 है, दिन लग जाएंगे। हाँ 1-2 दिन लग जाएंगे, हो सकता है कल क्लास हो या फिर मंडे से हो, मे बी। ठीक है, हो सकता है कि बाकी सारे बच्चों को ज्वाइन करने में उनको थोड़ा टाइम लगे, तो कई बार ऐसा होता है। सर अदरवाइज हम मिलेंगे सर जल्दी से सर सेकंड क्लास में। सर प्लीज 2 महीने का इसका टाइम निकाल के हमें करा दीजिए, बीच में छोड़ के नहीं जाना। नहीं नहीं बच्चे, मैं नहीं इसका छोड़ने जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मेरे पास ही रहोगे आप लोग। बस बस सर, उतना ही समझ सुना था।
ठीक तो है। इस क्लास का रिकॉर्ड मिल जाएगा क्या सर? करेक्ट, एवरी क्लास हैज अ रिकॉर्डेड सेशन, जो आप बाद में उसको 10 बार देखो, 50 बार देखो, वो आप उसको आराम से देख सकते हो। 1 साल का एक्सेस है। मिल एक जाएगा। साल का एक्सेस रहेगा आपके पास। ओके सर। हेलो सर। But sir, where can I, from where we find it that the link? You will get on your email, maybe in the specific, I'm not sure, you have to talk to the counselor, Network Kings counselor, or whoever approached you, or you can call in Network Kings, they will guide you. So you will get your own username and password credentials, so you will get those. सर मेरा एक कंसर्न था सर, मैं जैसे ऐसे आपसे पूछा, जो कनेक्टिविटी होती है टावर टू टावर, वो आरएफ के थ्रू नहीं होती सर? रेडियो, हाँ वो तो टावर वाली तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू होगी ना। हाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी शुरू होगी ना सर, जैसे हाँ वो जो जैसे हमारा टावर वो लगेगा टावर टू टावर तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ही होगी ना बच्चे, आरएफ सिग्नल्स होते हैं हाँ आपके। आरएफ सिग्नल के थ्रू होगी ना सर वो? हाँ वो वाली आरएफ के थ्रू होगी, बट ये जो तारे बिछी है ना, इसमें आपकी लाइट जा रही है, लाइट की हाँ स्पीड से डेटा जा रहा है, क्योंकि इसमें लेजर लाइट काम करती है। हाँ ये तो मुझे पता है सर। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल। एक ऐसा था सर, जैसे हमारा रेडियो चलता है ब्रॉडकास्ट, जो जैसे हम रेडियो सुनते हैं सर, एफएम वगैरह सुनते हैं, वो हाँ वैसे टावर भी हमारा वैसे काम करता है ना सर वो? रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, आपका वायरलेस भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। वायरलेस का टॉपिक आएगा, बहुत डिटेल में समझेंगे हम कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है। ओके सर। बहुत डिटेल में समझेंगे हम, वो टॉपिक नहीं आया ना अभी, है ना। ठीक है तो सर। मेरे को समझता है सारी पहली बार जब क्लास लेते हैं ना बच्चे, सब लोगों के बहुत सारे डाउट यही रहते हैं, बट होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को संभाल के रखो, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। एक दिन में नहीं बन जाओगे, मेरे पास घुटनी नहीं है, मैं पिला दूं आप लोगों को। एक ना ऐसा था सर, एग्री राइट सर। थोड़ा टाइम लगेगा, सर बच्चे, थोड़ा पहले दिन टाइम आपको सब देना पड़ेगा। उत्सुक होते हैं ना, और शायद हाँ, आज ही वो बन होता जाए है, इंजीनियर। that is what I am answering. That is why. हेलो थैंक हेलो यू वरुण सर। सर। ठीक है, अब वरुण जाएं सर। हम, 10 बज गया रात का, सो हाँ जाएं। सर, अभी खाना खाते हैं सर, भूख लगी है गुड बहुत। नाइट सर, गुड नाइट सर। कल मिलते हैं आपसे, यानी सेकंड क्लास में मिलते हैं आपसे, whenever सेकंड क्लास विल बी सर देयर। इसका रिकॉर्डिंग सर, कहाँ बैठ मिलेगा सर? मिल नहीं रहा ओके है। ओके सर, गाइस, नाइट में ओके सर, बाय बाय Good सर। night. guys, bye bye, good night. ओके सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर।